believing everything to be of God, whatever um, people claim to be from God, and believing everything that people say is from God. और ऐसा है कि एक सोच है कि सब कुछ परमेश्वर से ही आता है, और दूसरा सोच है कि व्हाट वाज द अदर वन, गैरी? सॉरी, आई एम So the first is rejecting the leading of the Holy Spirit, ओके। तो and एक सोच ऐसा है कि पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर नहीं रहता है, the other is to uh, believe all claims by people that they are speaking by the Holy Spirit. और दूसरा सोच है कि जो कोई भी बात करता है वो पवित्र आत्मा से भरपूर होकर ही प्रचार कर रहा है या बात कर रहा है। No. Um, so some people claim everything they claim that all that they are saying is from the Holy Spirit, कोई लोग बोलते हैं कि जो कुछ वो बात करते हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा है, and they say many things, और वो लोग बहुत कुछ बात करते हैं, but not and believing those people saying that yes, all that they are saying is from the Holy Spirit is another extreme. और उन पर विश्वास करना कि सब कुछ पवित्र आत्मा से ही है, तो ये एक बहुत ही व्हाट एक्सट्रीम को क्या बोलेगा, It's the opposite extreme. मतलब ये एक गलत तरीके का सोच है, हम बोल सकते हैं। So the first thing is about he says, do not quench the spirit and do not despise prophecies. तो इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि आत्मा को ना बुझाओ और भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। So in the word here in English is quench, यहाँ पर आत्मा को ना बुझाओ, बुझाओ करके ये शब्द है यहाँ पर। and even the Hindi word, it by just hearing the word you think of quenching your thirst. और ये शब्द जो है अपना प्यास को बुझाना के इस प्रकार का सोच है यहाँ पर। But when you actually look at what he's trying to say, it doesn't mean something like that, but it means something to suppress or to stifle. लेकिन मूल भाषा में जब हम देखते हैं ये बुझाव अर्थ जो है, इसका मतलब उसको दबा के रखना ऐसा है। Yeah, dabana or kuchalna. That's the two possible words in Hindi. So it's used not in a material sense, that is something that you can touch or feel, और ये ऐसा स्पर्श नहीं कर सकता है, ऐसा वस्तु नहीं है ये, but it talks about a metaphysical sense. लेकिन ऐसा ये जो है ये हम लोग कह सकते हैं कि आत्मिक बात है। Yeah. So the question here is not something that you can suppress it in a way that can be seen, और ये ऐसा कोई चीज है जो आप देखता है, अपने अपने आंखों से दिख रहा है और उसको हम दबा रहा है, ऐसा नहीं है। but is more of a question of will and willingness. यहाँ पर इच्छा और परमेश्वर का आज्ञा पालन करने का बात है। Yeah. So it's the main issue here is not wanting to uh, trust in the leading or in the will of the Holy Spirit. और मुख्य बात यह है कि हम परमेश्वर का अगुवाई पर निर्भर नहीं रह रहे हैं। That means we want to do our own will. हम अपने इच्छा के अनुसार करना चाहते हैं। We want to always go our own way. हम अपने रास्ते पकड़ना चाहते हैं। But to not quench the spirit means to yield to the Holy Spirit. और ये
आत्मा को ना बुझाओ मतलब हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना चाहिए। and yield or उसके अधीन होना, we need ओके, to be तो submit उसके to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अधीन रहना इसका ये मतलब है। So how do we submit to the Holy Spirit? तो पवित्र आत्मा के अधीन हम कैसे होंगे, And how do we not quench the Spirit? और पवित्र आत्मा को ना बुझाओ ये कैसा संभव है? One, the plain thing, the first thing that is very plain is to submit to the plain teachings of the Word of God. तो जो सरल रूप से पवित्र शास्त्र हमको सिखाता है उसका आज्ञा पालन हम करना चाहिए। Last week we saw one clear instruction, which is the will of God. पिछले बार हमने एक स्पष्ट रूप से एक आज्ञा को देखा था। Can anyone tell me what that is? वो वो क्या था, कोई बता सकता है? Give thanks. Yes. Give thanks. That is the will of God. तो परमेश्वर को धन्यवाद दो, ये परमेश्वर का इच्छा है। So that is a plain teaching of the Word of God. और ये बहुत ही स्पष्ट रूप से ये परमेश्वर का इच्छा प्रकट हुआ है। And when you disobey such plain teachings, और ये जो सरल और स्पष्ट रूप से जो बाइबल हमको सिखाता है उसको हम लोग स्वीकारते नहीं, उसको रिजेक्ट करते हैं, that that is equal to quenching the Spirit. तो इसका मतलब है हम परमेश्वर का आत्मा को बुझा रहे हैं। We are not submitting to the teaching of the Word of God, which has been brought to us by the Holy Spirit. और सरल रूप से स्पष्ट रूप से जो पवित्र आत्मा ने जो बातें हमको सिखाया उसके अधीन हम नहीं हो रहे। We know that the whole Word of God has been inspired by the Holy Spirit. और हम जानते कि जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र है वो पवित्र आत्मा के जरिए हमको मिला है। Right from Genesis 1:1 till the very last verse in Revelation. और आदि पुस्तक उत्पत्ति का किताब से प्रकाशित वाक्य का अंत तक सारे अध्याय, सारे पुस्तक जो बाइबल में पाए गए ये पवित्र आत्मा के जरिए हमको ये मिला है। So whatever is taught, the plain teachings of the Word of God are from the Holy Spirit, and और we should submit to them. ये जो शिक्षा पवित्र आत्मा के द्वारा हमको मिला है, ये जो सरल और स्पष्ट रूप से आया है, इसके अधीन हम रहना चाहिए। The second thing is sometimes the Holy Spirit guides us through His Word and He prompts us through His Word. दूसरा बात यह है कि कभी-कभी परमेश्वर हमको उसके वचन के द्वारा हमको मार्ग दिखाता है और कुछ करने के लिए बोलता है। And it is in the form of guidance um, or instruction. और ये भी एक मार्गदर्शन के रूप में है और आज्ञा के तरह है, हमको ये दिया है। And these are things also that we need to abide by what the Holy Spirit is prompting us to. और इन बातों को भी हम लोग सुनना चाहिए और इन बातों को जो परमेश्वर जो हमको मार्ग दिखा रहा है उस मार्ग पर चलना चाहिए। Sometimes a burden is laid on our hearts, और कभी-कभी कोई बोझ हमारे ऊपर आता है and that too is from the Holy Spirit, that we should do something, that we should help someone, that we should, you know, or there's a responsibility given to us from the church.
और ये बोझ पवित्र आत्मा हमको देता है कि किसी का सेवा करना या किसी का मदद करना या मंडली के जरिए हमको कुछ काम दिया या काम सौंपाया जाता है। ये सारी चीजें जो है इन बातों को भी हमको सुनना चाहिए। And we should obey those those guidings by the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा के जरिए ये बातें जो हमको बताया गया उनको हम सुनना चाहिए। Lastly, it is to accept whatever God provides us in His providential will. और आखिरी में हम लोग ये देखते हैं कि जो कुछ पवित्र आत्मा के जरिए हमें दिया गया है, The providential acts of God, when God provides for us in His providential will. अच्छा, जो परमेश्वर के भंडार से जो कुछ भी हमको मिलता है, जो उन्होंने हमको दिया है, उसका उपयोग हम लोग करना चाहिए। Sometimes we don't get what we desire. कभी कभी हम लोग जो आशा करते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, हमको कभी कभी वो चीज मिलता नहीं है। Sometimes some things are withheld from us in और God's wisdom. और कभी कभी कुछ चीजें परमेश्वर के बुद्धि के अनुसार वो चीज हमें दिया नहीं जाता। And sometimes God gives us according to what His will and plan is to use us. लेकिन कभी कभी परमेश्वर कुछ चीज हमको देता है ताकि हम उन चीजों का इस्तेमाल उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। And it could be even things like uh, marriage, job, a place to stay, and all those kind of things also are included in that. और ये शादी के रूप में हो सकता है, ये काम के रूप में हो सकता है, या ऐसे जो चीजें जो हमको मिला है, ये परमेश्वर ने हमको ये चीज दिया है। And accepting those as provided from God. और वो जो काम या फिर वो जो रिश्ता हमको मिला है, ये सारी चीजें जो हमारे सामने आए हैं, ये परमेश्वर ने दिया है करके अगर विश्वास करके उसको स्वीकारना है, ये परमेश्वर के आत्मा के अधीन रहना जैसा है। Suppose a child is born in our family and we say we don't want that child. अभी सोचो कि हमारे परिवार में बच्चा जन्म लिया है और हम कहते हैं कि हमको ये बच्चा नहीं चाहिए। That is, no one does that. तो ऐसा कोई नहीं करता है। Everyone loves and accepts, you know, the people brought into our lives by God. और जो परमेश्वर ने जो बच्चे हमें सौंपे हैं, हम लोग उनको प्यार से स्वीकारते हैं और उनको उनका पालन पोषण हम करते हैं। In the same way, uh, every area of our life where God has provided either people or things, we accept those things in faith as from God, and we either take care of that responsibility or use those things for His glory. और जो चीजें हमें सौंपे गए हैं, उन चीजों का इस्तेमाल ठीक रीति से, सही रीति से हम लोग करते हैं। So the thing to remember here is, when we say do not quench the spirit, it is not about our will, but accepting the will of the Holy Spirit. और यहाँ पर आत्मा को ना बुझाओ का मतलब है कि ये बातें जो परमेश्वर के आत्मा ने हमको सरल और स्पष्ट रूप से दिया है, उनको स्वीकारना। We can always remember the prayer of our Lord Jesus Christ. और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना को हम याद कर सकते हैं। In Luke, we can read this in Luke 2:42. और लूक उसका दूसरा अध्याय 14 पद में 22:42.
और सॉरी लूक 22 अध्याय और उसका 42 लूक 22 हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। So we may desire many things in our lives, or we may want certain things to happen in our lives. और इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हम अपने जीवन में चाहते हैं या हम लोग आशा करते हैं, But submitting to the will of God is saying this, not my will, but yours be done. लेकिन हम लोग ये बात हम जानना चाहिए कि हमारा इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर के इच्छा के अनुसार होना चाहिए। Being willing to lay down our own will before the will of the Lord Jesus Christ. और हम अपने इच्छा को परमेश्वर को समर्पित करना चाहिए। So that is one end of the spectrum. The other spectrum is when you say people despised the prophecies of those who were called prophets in those days. और दूसरा विषय यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे भविष्यवाणी देने वाले लोग थे उस काल के मंडली में। So in the early church, there seems to be two types of people or offices that were required for the foundation of the church. और हम लोग देखते हैं कि पहले शताब्दी में जब मंडली शुरुआत हुआ तो दो प्रकार के लोग थे मंडली के स्थापित करने में जो योगदान रहे। We can read about this in Ephesians chapter 2 verse 20. और उस विषय में हम लोग इफिसियों का चिट्ठी का दूसरा अध्याय और उसका 20 पद में हम लोग देख सकते हैं। Someone read that please. इफिसियों का दूसरा अध्याय और 20 कोई पढ़ेगा मिलने से? और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो। So in the foundation of the church, there were these two offices, apostles and prophets. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं शामिल थे मंडली का स्थापित होने के समय। So once you lay a foundation, you don't need to go back and build another foundation. और स्थापित करने के समय में नींव लगा दिया जाता है, उसके बाद दोबारा ये नींव जो है हम लोग नहीं बनाते हैं। So what was needed for the church during its foundation was fulfilled through the ministry of the apostles and the prophets. और हम लोग देखते हैं कि मंडली का शुरुआत में पहले शताब्दी में तब प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं का जरूरी था। So once the foundation was laid by the apostles and prophets, these two offices were no longer required. And therefore, today we do not have these apostles or prophets. और जिस प्रकार से नींव जो है ये जमीन के नीचे रहता है, ये शुरुआती के समय में उस प्रकार से प्रेरित और भविष्यद्वक्ताएं जो है मंडली के शुरुआत में वो नींव थे, शुरुआत उन्होंने किया। तो अभी जब ये मंडली बढ़ चुका है, बड़ा हो गया है, तो दोबारा ये भविष्यवाणियों का ये और प्रेरितों के जैसे ये जो आत्माओं का दान है, इनका कोई जरूरत नहीं है। So
Um, so today we don't have these uh, uh, these um, these offices, because through their ministry the New Testament was written and the New Testament was complete. So all their work we have today in our hands in the form of the New Testament. और वो जो भविष्य वक्ताएं हैं और जो प्रेरित है, उनका जो कार्य, उनका जो सेवा आज भी हमारे हाथों में है, वो नया नियम के रूप में. And so whenever we read the New Testament, we are looking at the foundation of our faith and the foundation of the church, and this is where we come back to for our source of authority. और जब हम नया नियम को पढ़ते हैं, तो दोबारा हम उस नींव में जा रहे हैं और देख रहे हैं कि जो सेवा प्रेरित लोग और भविष्यद्वक्ताओं ने किया, वो कार्य को हम लोग नया नियम में देख सकते हैं. But during those days, there were people who would despise those who were genuinely bringing the word of God. लेकिन ऐसा है कि उस समय के काल में जब प्रेरित लोग जिंदा थे, तो ये प्रेरितों के विरुद्ध में बोलने वाले बहुत सारे उठे. Because there was the fact that there were also false prophets. और हो सकता है कि उस समय में बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ताएं भी थे. So you have both the prophets and false prophets, and all of them prophesy in the name of the Lord. और ये And because the false prophets also say things which are not right, so in that process, even the prophets of God were despised. तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर झूठे भविष्यद्वक्ता भी है और सच्चे भविष्यद्वक्ता भी है, और दोनों भविष्यवाणी कर रहे हैं. और झूठे भविष्यद्वक्ताओं के कारण जो है, ये लोग जो है कह रहे हैं कि ये सारे भविष्यद्वक्ताएं जो है खराब है और कोई विश्वास नहीं करना चाह रहा है. So therefore, the Apostle Paul is reminding the Thessalonian church to not despise prophecies. और इसलिए तेसलोनिका 5:20 में पौल कहता है कि भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो. But at the same time, he says, test all things. लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि सब बातों को परखो. So when someone claims to be speaking about from the Lord, test them. और अगर कोई पवित्र आत्मा के जरिए अगर वो सच में भविष्यवाणी कर रहा है, तो उनको परख के देखो. Now, this can apply to us in our day and age also. और यही बात को आज के काल में, आज के समय में हम इस्तेमाल कर सकते हैं. One of the ministry of the prophets was to speak the word of God. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भविष्यवाणियों का एक काम था कि हम परमेश्वर का वचन को बोलना. And today too, we have an element of that work. और उसी कार्य का जो अंश आज हमारे पास है, And that is speaking the word of God or teaching the word of God. और वो है पवित्र शास्त्र का शिक्षा देना, पवित्र शास्त्र के बारे में बोलना, प्रचार करना. ये भविष्यवाणी का एक भाग है. And that still exists today. और वो कार्य आज भी लागू है. And even today, this holds true, test all things. और इसलिए ये जो भविष्यवाणियों को परखना, यही बात जो है भविष्यद्वक्ताओं के बारे में जो भी शिक्षा हम लोग सुन रहे हैं, उनको भी परखना जरूरी है.
whatever is being spoken today by me also should be tested. और जो बातें मैं भी आपको सिखा रहा हूँ उनको भी आपको परखना चाहिए Everything should be tested. और मेरा भी परीक्षा आप लेना चाहिए कि ये भाई गैरी जो सिखा रहा है ये सही है या गलत है Today we live in the age of WhatsApp forwards. और आज हम व्हाट्सएप के फॉरवर्ड के जमाने में रहते हैं We get all kinds of messages and videos and all kinds of information. और व्हाट्सएप के जरिए बहुत खबर हमको मिलता है But not all of it is true. लेकिन हम जानते हैं कि जितने भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स हमको खबर मिलता है सारे सच नहीं होते हैं Even those we need to test and see whether it is true or not. और उसी प्रकार हम लोग उन चीजों को परख कर देखना चाहिए All information is not right. हर जो बातें जो खबर जो हमको मिलता है वो सच नहीं होता है Test all things. और उनका परीक्षा करो उनको परख कर देखो But what is right and what is good, we have to hold fast to it. लेकिन जो अच्छी है उसे पकड़े रहो ऐसा लिखा है And this is regarding the word of God. Hold fast what is good. और जो अच्छी है उसे पकड़ के रहो ये पवित्र शास्त्र के बारे में बता रहा है हमको So, whatever is being taught to us, test it. और जो कुछ भी हम लोगों को सिखा रहा है उसको परख कर देखो And if it is right, hold fast to that. और अगर वो ये बातें सही है तो उनको पकड़ के रहना We know there's a Fevicol ad which comes. और हम लोगों को याद है फेविकॉल का जो एड लगता था टीवी पे And pakde rehna this we say. और वहां पर बोलते थे कि पकड़े रहो So the same thing, hold fast to what is good. और इसी प्रकार हम लोगों को बाइबल या पवित्र शास्त्र को पकड़ के रहना चाहिए Then he goes on to the next part where he says, abstain from every form of evil. That's verse 22 to 24. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful to also do it. अभी 22 से 24 तक हम लोग देखने वाले हैं सब प्रकार की बुराई से बचे रहो शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे So he's talking about being holy. और यहाँ पर हम लोगों को बता रहा है कि पवित्र रहो And the word, one of the word used here is sanctify. और शुद्धिकरण is that So sanctify, pavitrikaran, maybe that's yeah another word. शुद्धिकरण so Okay, so yeah, so now one of the things he says is abstaining from every form of evil in verse और 22. 22 पद में लिखा है कि सब प्रकार की बुराई से बचे रहो And verse 23 says, may the God of peace himself sanctify you completely. और Verse 23. 23 ओके और शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे Now, when we look at this thing called sanctification in the Bible, अभी यहाँ पर पवित्र करे या शुद्धिकरण जब हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं so when you look at the word sanctification and see what the meaning is, it means that it's an action or
declaring something to be holy. और शुद्धिकरण का मतलब है किसी चीज को पवित्र करना. Now, when we look at our lives and when we come to the Lord Jesus Christ, we are made holy. जब हम अपने जीवन को देखते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो हम लोगों को पवित्र किया जाता है. We worship a holy God. हम एक पवित्र परमेश्वर का आराधना करते हैं. No one who is unholy can worship God. और कोई अपवित्र व्यक्ति परमेश्वर का उपासना नहीं कर सकता है. We see in the Old Testament how many kinds of rituals people had to do to be able to approach this holy God. और पुराने नियम में हम इन बातों को देखते हैं कि इतने सारे रीति का पालन उनको करना पड़ता ये पवित्र परमेश्वर का उपासना करने के लिए. Now, we do not do any rituals, अभी हम लोग किसी रीति रिवाज का पालन नहीं करते हैं, but we are still able to approach a holy God to worship Him, to communicate with Him, and to be in His presence. और फिर भी हम एक पवित्र परमेश्वर का आराधना और उपासना करते हैं और उसके सानिध्य में हम आते हैं. So, how is this possible? तो ये कैसे संभव है? It is possible through the work that the Lord Jesus Christ has done for us. ये संभव है क्योंकि पवित्र प्रभु यीशु मसीह का जो कार्य के वजह से हम उसके पास आ सकते हैं. So, He died for us. वो हमारे लिए मरा. He took our sin upon Himself. उसने हमारे पापों को अपने कंधों पे लिया. And when we are in Him, और जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, we are seen through the Lord Jesus Christ. तो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें देख लिया जाते हैं. So we read Hebrews chapter 10 and verse 10. तो Hebrews 10:10. इब्रानी 10 का 10 कोई पढ़ सकता है? इब्रानी 10 का 10. Okay, I'll read that. उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए. So we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. तो यहाँ पर हम लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के शरीर के द्वारा हमको पवित्र किए गए हैं. So we have been made holy. और उसके जरिए हम पवित्र बने हैं. So in English, they call this positional sanctification. That means positionally we are holy. It is not based on something we have done, but because of what the Lord has done for us, what the Lord Jesus Christ has done for us, we have been declared holy. और ये बात को हमको समझना जरूरी है कि हम शुद्ध कैसे हुआ. अपने कार्यों के वजह से शुद्ध नहीं हुआ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो समाप्ति काज जो उन्होंने काम जो क्रूस पर किया, उसके वजह से हम लोग शुद्ध किए गए और हम लोग प्रभु यीशु मसीह में पाए गए, इसलिए हम लोग पवित्र हैं. Now here in 1 Thessalonians 5 and 22, he says, abstain from every form of evil. और अभी यहाँ पर 22 पद में ये भी लिखा है कि was 24 he said, right? 22. Okay, it was 22 में सब प्रकार की बुराई से बचे रहो. Now this is something that we need to do. और ये हम लोग करना चाहिए. So it is something that we keep ourselves holy. और
इससे हम लोग पवित्र अपने आप को पवित्र रख सकते हैं। It is basically an outward evidence of what God has done for us inwardly. तो जब हम इस प्रकार से रहते हैं, बुराई से बच के रहते हैं, तो परमेश्वर ने जो कार्य हमारे अंदर में किया है वो बाहरी रूप से हम लोग प्रकट कर सकते हैं। This does not come all at once, और ये फटक करके एक बार में नहीं आता है, but it's a long process as we keep ourselves away from uh, worldly worldly acts, from sinful acts, and keep ourselves holy for the Lord. और ये इन बातों को हम लोग सीखना पड़ता है। समय के साथ हम लोग जिस प्रकार से कोशिश करते हैं तो हम लोग पवित्र और शुद्ध जीवन जीना सीखते हैं। This doesn't add anything to our holiness, और इस प्रकार से जब हम जीवन जीते हैं तो हम ज्यादा पवित्र नहीं बनते हैं, but it is the evidence that God has worked in us and has made us holy, and we are working and doing our part in keeping ourselves holy. लेकिन ये दिखा रहा है कि पवित्र आत्मा या परमेश्वर ने जो काम हमारे जीवन में किया है, उसने हमको शुद्ध किया है, वो बाहर रूप से मैं लोगों को दिखा रहा हूँ। और ये बाहर रूप से दिखाई दे रहा है कि ये सच में एक पवित्र जीवन जी रहा है। Because we are in the presence of sin, we will always sin and we will always fall. और हम लोग जिस संसार में रहते, दुनिया में रहते हैं, ये पाप से भरा हुआ जीवन है, तो इसलिए हम लोग पाप में गिर सकते हैं। But on the inside, we have been made holy, and we do our best to bring that inward work outward. लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं जो परमेश्वर ने जो काम हमारे दिल में किया है उसके मतलब जो कार्य परमेश्वर ने हमारे अंदर हमारे आत्मा में किया है, बाहर रूप से उसको दिखाने का कोशिश करते हैं। 2 Corinthians chapter 7 and verse 1. Can someone read, please? 2 कोरिन्थ उसका 2 Corinthians 7 verse 7 1. अध्याय और पहला पद। 2 कोरिन्थ 7 और 1। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। Okay. Now, one thing we remember, it is the fear of God, it is the Holy Spirit which enables us to live holy lives. अभी ये याद रखना जरूरी है कि पवित्र आत्मा हमको शुद्ध जीवन जीने के लिए सिखाता है। We cannot do it on our own effort, even though I said that it is our part, because it is something that we do ourselves, but we cannot actually do it without the help of the Holy Spirit. और ये समझने का कोशिश करो कि हम अपने आप ये शुद्ध जीवन नहीं जी सकते हैं। यदि मैंने बोला कि हम ये हमारा कार्य है, हमारा काम है, ये हम अपने अकेले में ये काम नहीं कर सकता। ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से और सहायता से हम ये इस प्रकार का शुद्ध जीवन जी सकते हैं। We must rely on the Holy Spirit for strength to lead a holy life. और पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहना चाहिए हमको एक पवित्र जीवन जीने के लिए। If we try to live our life holy on our own, we cannot. और अगर हम कोशिश करें हम अपने शक्ति से
शुद्ध जीवन जीने के लिए, तो हम वहां पर फेल हो जाएंगे। So, this living our lives, abstaining from evil, and cleansing ourselves, that is also done through the Holy Spirit. और इस प्रकार से एक अलग जीवन जीने के लिए, एक शुद्ध जीवन जीने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए, ये सारे चीजें जो है पवित्र आत्मा के भरोसे के ऊपर ही होता है। It cannot be done on our own. और ये हम अकेले बिल्कुल नहीं कर सकते। Now, therefore, he says in verse 23, now may the God of peace himself sanctify you completely, and और may इस your whole spirit, soul, and body be preserved blameless. 23 पद में ऐसा लिखा है, पहले थिस्सलुनीका 5:23 में, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरे रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। So, as we go ahead, working out this sanctification, God is working in us and sanctifying us. बाहर रूप से जब हम पवित्र जीवन जीने का कोशिश करते हैं, जीने लगते हैं, तो अंदर में भी पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे शुद्धिकरण करता है। So, outside, as our behavior changes, as we grow closer and closer to the Lord, our behavior also will become more and more like the Lord Jesus Christ. और जैसा हमारा स्वभाव बदलता रहता है, हम जिस प्रकार से शुद्ध जीवन जीने करते हैं, तो हम लोग और भी प्रभु यीशु मसीह के तरह बनते चले जाएंगे। And so, the outward work that we do is because of the inward work that God is doing in us and in our lives. और बाहर का जो दृश्य है हमारे जीवन का, वो अंदर में परमेश्वर कार्य कर रहा है, इसलिए मैं बाहर से एक शुद्ध जीवन जी रहा हूँ। So, inwardly, our spirit and soul is being sanctified, और अंदर से हमारा आत्मा और प्राण जो है ये शुद्ध हो रहा है, and outwardly, by abstaining from evil, by submitting to the Holy Spirit, by leading holy lives, our body is also being sanctified. और उसी प्रकार से बाहर से मेरा शरीर, मैं एक शुद्ध जीवन जी रहा हूँ, पवित्र जीवन जी रहा हूँ, मेरा शरीर भी पवित्र होता जाएगा। When it says body, it refers to what we do. We know this body is going to be destroyed, और हम लोग जानते हैं कि हमारा शरीर का नाश होने वाला है, but we have been promised a renewed body. लेकिन हमको एक नया शरीर मिलने वाला है करके हमको सिखाया गया है। At the coming of the Lord, we will receive a new body. और प्रभु यीशु मसीह के आने के समय में हमको एक नया शरीर मिलने वाला है। So this body will die here, और इस प्रकार से ये शरीर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। and when he returns, those who are still alive, we will be transformed in the twinkling of an eye. और जो लोग जिंदा है, एक क्षण भर में वो लोग बदल जाएंगे, And we will have a perfectly holy body. तब हमको एक बहुत ही पवित्र शरीर हमको मिलेगा। But while we are here and living in this body, लेकिन यहाँ रहने के दौरान we are sanctifying us. Our body is being sanctified by being abstaining from evil and from doing good things through the strength of the Holy Spirit.
यहाँ पर हम लोग जब पवित्र जीवन जीते हैं, सब प्रकार की बुराई से जब हम बच के रहते हैं, तो हमारा शरीर का शुद्धिकरण भी होता है। Now, the most amazing thing is verse 24. He says, "He who calls you is faithful, who will also do it." और ये कार्य को पूर्ण करने वाला जो है वो 24 वचन में लिखा है, तुम्हारे बुलाने वाले सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। When we look at ourselves, we think, how can we be holy? और जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हम पवित्र कैसे बने। Every moment of our lives, we fall, we sin. और हर क्षण हर हर रोज हम किसी पाप में गिरते हैं। So many thoughts run through our minds. इतने सारे बुरे विचार हमारे मनों से गुजरते हैं। There's so many things that lure us and sometimes trap us. और बहुत सारे चीजों का के अभिलाषा में हम लोग फंस जाते हैं। But here he says, "He who calls you is faithful, who will also do it." लेकिन यहाँ पर ये वचन कहता है कि तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। Our holiness, our sanctification does not depend on us. हमारा पवित्र करना या शुद्धिकरण जो है हमारे ऊपर, हमारे हाथों में नहीं है। God is the one who does it. परमेश्वर उस कार्य को पूर्ण करता है। Through faith, we accept the Lord Jesus Christ. विश्वास से हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारते हैं। He's done all the work for us. उसने सारे कार्यों को समाप्त किया है। He sanctifies us, उन्होंने spirit, soul, and body. उन्होंने हमको शुद्ध किया है, पवित्र आत्मा मतलब हमारा प्राण, आत्मा और शरीर को। And our ongoing sanctification, our leading holy lives, that too, He will enable us to do. और ये सारे बातों को पूर्ण करने वाला वो परमेश्वर खुद ही है। हमारा शुद्धिकरण वो ही करेगा। If we fall into sin, अगर हम पाप में गिर गए, let us not be discouraged. हम लोग दुखी नहीं होना चाहिए। Word of God says, "He who confesses," 1 John 1 9 says, "If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness." और पहले यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 9वां वचन में ऐसा लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। We always can start again. और हम लोग दोबारा अपना जीवन को शुरू कर सकते हैं। God is always there to forgive us in the Lord Jesus Christ and to bring us back. और प्रभु यीशु मसीह में हमारा सब पापों का क्षमा होता है और हमें वापस लिया जाता है। Final few verses, 25 onwards, is the closing of the book. और 25 से 28 तक ये समाप्त के बातें हैं यहाँ पर। So, in verse 25, he says, "Brethren, pray for us." वहाँ पर हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो, 25 पद में लिखा है। Here is the great apostle Paul saying, "Pray for me." और ये पौलुस जो इतना महान प्रभु के दास रह चुके हैं, वो कह रहा है मेरे लिए प्रार्थना करो। Many times we feel we we are too holy or too big to ask people to pray for us. और हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हमारे लिए कोई प्रार्थना नहीं करना चाहिए। We don't want to ask others to pray for us. और हम किसी को बताते नहीं हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए। We have troubles, we have issues, we have difficulties, and we just keep it aside, keep
keep it away and we don't ask people to pray for us. और हमारे कठिनाइयों को हम किसी को बताते नहीं है, और हम अपने आप में ये बातों को रखते हैं, और किसी को हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए भी नहीं बताते। Especially sometimes church leaders do that. They never tell the church that, pray for me. और ये बहुत सारे जो मंडली के अगुवाए होते हैं, इस प्रकार से वो अपना जीवन जीते हैं, वो अपने परेशानियों को किसी को बताते नहीं है। They think, I am the elder, how can I ask someone to pray for me? मैं इस मंडली का प्राचीन हूँ, मैं बड़ा हूँ यहाँ पर, मैं कैसे बताऊँ मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए। But here is the Apostle Paul asking the church of Thessalonica to pray for him. लेकिन यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि मेरे लिए प्रार्थना करो। So let us always seek prayer, because the word of God says the prayer of a righteous man availeth much. और क्योंकि प्रभु का वचन ये भी सिखाते हैं कि एक धार्मिक व्यक्ति का प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। So let us not be proud to ask for prayer. और किसी से प्रार्थना मांगने के लिए हम घमंड नहीं करना चाहिए, और इस प्रभु के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। He says, greet all the brethren with a holy kiss. सब भाइयों को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। Okay, now this is something that was done in their culture and in their time. और इस प्रकार का नमस्कार उस काल में वो लोग करते थे। And it is not, we don't do that in our culture. और हमारे देश में इस प्रकार का नमस्कार कोई नहीं करते हैं। But the point is that he greets everyone, and we too should greet everyone. और मुख्य बात यह है कि हम एक दूसरे को नमस्कार करना चाहिए। We should all be polite to one another and show our love और for one another. जब हम एक दूसरे को नमस्कार करते हैं तो हम अपना प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। And he wanted that this letter be read to all in the assembly. और पौलुस चाह रहा था कि इस पत्र को हर मंडली में पढ़ना चाहिए। Word of God is for everyone. परमेश्वर का वचन सबके लिए है। And the word of God should be read and preached to everyone. और परमेश्वर का वचन सबको सुनाना जरूरी है। And this book of Thessalonians is for us also. और ये थेसलोनिका का पत्र जो है हमारे लिए भी है। And therefore we have been studying and looking at this. और इसलिए हम इस पुस्तक को देख रहे हैं और सीख रहे हैं। And he ends this with the grace, asking that the grace of God be with them. और अंत में हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। And our prayer too for our fellow believers should be like this, that the grace of our Lord Jesus Christ be with them. और हमारा प्रार्थना दूसरों के लिए इस प्रकार से होना चाहिए कि परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हो। Well, that's the end of this book, and I hope this has been a blessing to you all, and I thank everyone for your patience in hearing, and I pray we'll continue to pray for you all that you would be continually blessed. और यहाँ पर ये थेसलोनिका का चिट्ठी का अभ्यास समाप्त हुआ है। सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये बातें जो है जो सीखे हमने ये आपको लाभदायक रहे। मैं आपके लिए हमेशा प्रार्थना करता रहूँगा। धन्यवाद। Thank you, everyone.